Hello guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing really good, really well. And I know I took a really long time to shoot a video and like my last video was my birthday vlog part 2 and uske baad that I uploaded it in maybe January or February starting and uske baad it is April. एंड देन आई एम अपलोडिंग द वीडियो बिकॉज बहुत कुछ हो गया था. कॉलेज लाइफ इजी नहीं है तो उसमें पूरा हो गया. फिर उसके बाद कंटेंट की शॉर्टेज चल रही थी कि क्या पोस्ट करूँ. से इवन मैंने एक वीडियो शूट करवाई कि माई ब्रदर डज ना मेकअप, ही मेड मी अ कम्प्लीट भूत. एंड वो चीज़ मैं यहाँ पोस्ट नहीं कर सकती थी कि जो उसने मेरा हाल किया था. उसके बाद देन आई थॉट why not make banoffee pie. Like in one of my video I said that I'll be making banoffee pie. Maybe that was the laptop one where I purchased my laptop. So we are making that. So the ingredients that we'll be needing are Milkmaid, or you can even take Mithai Maid, and it is for the toffee sauce. जो हमारी second layer है toffee sauce की. उससे पहले हमारी first layer है crust की. उसके लिए we'll be needing biscuits. You can take any biscuit you like. Yeah, you can go for Oreo, you can go for Bonbon if you need like a chocolatey layer, or even if you are like the diet conscious person, then you can go for like McVitie's. Any digestive biscuit will go. For with this we'll be needing a butter क्योंकि कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए उसकी कि बाइंड हो जाए अच्छे से. देन फॉर दी थर्ड लेयर विल बी नीडिंग ऑब्वियसली बनाना क्योंकि banoffee pie है. एंड फॉर द फोर्थ लेयर वी कैन से द लास्ट लेयर विल बी नीडिंग fresh cream. You can take any fresh cream. We'll be making whipped cream out of it. जिस मार्केट में whipped creams available होती हैं तो you can also go for that. But I thought why not make it at home. Like थोड़ा मज़ा आता है ना बनाने में, खुद बनाओ. And इसके साथ if you like you can garnish the entire banoffee pie with chocolates or even with cocoa powder. Okay, let's get started. I am shooting this video all alone. There's like Yash used to help me, but this time he's not helping me at all. He's playing PUBG. He said that I won't be helping you out in this. So I don't know how I'll be managing this because selfie stick बहुत दूर की है, बार बार यूं जाओ करना. First layer we'll be taking biscuits. I'm taking Marigold because ये tasty होते हैं. They are super, like I can't say super, but they are like digestive ones. They are light. I am using 2 layers from the 250 grams of the packet and इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि थोड़ा पाउडरी हो जाए. पाउडरी होगा उसके बाद वी विल बी मिक्सिंग इट विद बटर सो दैट इट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म आवर फर्स्ट लेयर. So here we have this powdery mixture. Then we will be mixing it out with butter. But before mixing it, I'll be like boiling the butter for 30 seconds, I guess. मैं बहुत ज़्यादा लाइट बोल रही हूँ. I don't know why. I need to improvise. I definitely need to improvise on these things. On my communication skills. Maybe, I guess so. बाकी देखते हैं. I will be using around half of the butter right now. Then I'll be melting it. It's already in room temperature. तो आप देख रहे हो कितना sticky हो रहा है. I'll melt it. Now we have the molten butter with us. I'll be mixing it in the powdered mixture, not batter. Batter नहीं है ये यार नरूला. एक साथ सारा नहीं डालेंगे, पहले हाफ डालेंगे फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि लम्प्स भी ना हो इसमें एंड ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए. It is 18th of April today and आज नोएडा में you can say 1 day का लॉकडाउन है या कर्फ्यू है फ्यू आवर्स क्या
मतलब 1 डे का इट स्टार्ट द कर्फ्यू टुक प्लेस 8 PM on 17 and it is till 7 AM tomorrow, that is 19th. And I didn't knew that I was like confused कि क्या करे क्या ना करे. I was like कि पूरे दिन का vlog shoot करते हैं, but are you people really interested in seeing like what I do in the entire day या मैंने मेरी family ने क्या किया? क्योंकि इतना कुछ हैपनिंग तो होता नहीं है अगर ऐसे स्टे हो, बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो. मैंने ऐसे ही होली का सोचा था क्योंकि कोई प्लान नहीं था होली पे, बट देन आई वाज लाइक कि रहने दो क्या करेंगे. वही मेरा सेम यही पॉइंट था कि किसी को इंटरेस्ट है नहीं मेरी मतलब ऐसे डे इन माई लाइफ देखने में. सो इफ़ यू गाइज रियली इंटरेस्टेड इन सीइंग लाइक व्हाट आई डू, लाइक ऐसे कोई चीज़ आ रही हो पर्टिकुलर, तो देन आई विल बी शूटिंग. बैसाखी पे मेरा प्लान था, बट फिर बैसाखी पे आई वॉज एट नानीज प्लेस, फिर वहाँ कुछ नहीं किया हमने. लाइक जब आपको लगे ना दैट द इंटायर थिंग इज़ लाइक मिक्सड विद वेरी फॉर्मली, कि आपको लग भी रहा है कि ऐसे यूं करने पे कि ये स्टिक होगा इकट्ठे कंबाइन होगा, देन यू कैन pour it in the like 10 and taking 22 सेंटीमीटर 10 उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारा किया है. अब मैं पूरा का पूरा मिक्सचर हमारी केक टिन में डाल रही हूँ. आप चाहो आप केक टिन को पहले बटर कर सकते हो, बटरिंग कर सकते हो उस पर, बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज मुझे कोई उसको उससे हटाना नहीं है. मैं इसी टिन पे सर्व करने वाली हूँ बाद में. अब इसको अच्छे से हम फ्लैट कर लेंगे. So with this our crust is ready. I'll be keeping it in the freezer for around 10 minutes. अगर आपको मतलब you have a bit time तो आप इसको around 1 hour फ्रिजर में रख सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर में. बट लाइक आई हैव टू बी अ बिट क्विक, सो आई विल बी कीपिंग इट फॉर अराउंड 10 minutes आई सेड, मे बी 10 और अराउंड 30 minutes तो एटलीस्ट मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी सो दैट कि हमारी क्रस्ट मतलब थोड़ी बाइंड हो जाए साथ में, कि अगर जब हम इसको बाइसेकेट कर रहे हो, हम इसको कट कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, तो ये लेयर हमारी टूटे ना. सो फॉर मेकिंग दी व्हिप्ड क्रीम वी विल बी नीडिंग फ्रेश क्रीम एंड ऑल्सो सम पाउडर्ड शुगर, या आप इसे हिंदी में बूरा बोल सकते हो, चीनी का बूरा. सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप या सबसे पहले जितना भी मतलब जो मोटा पार्ट है हमारी क्रीम का, नॉट द वाटरी थिंग, हम उसको एक बोल में डाल देंगे. लाइक आई एम टेकिंग अ स्मॉल बोल क्योंकि इससे ईजी होता है उसको मिक्स मतलब ग्राइंड करना. ग्राइंड ही हो गया, ठीक है. इसको हम इसमें एम्प्टी कर देंगे. Makes a weird sound. Then like I've already kept the equipments like this grinder thing in the refrigerator for 2 hours कि थोड़ा ठंडा है, so that ये थोड़ा ठंडा ठंडा इसमें मिक्स होने में it would be good and easy कि जल्दी जल्दी बाइंड भी हो जाएगा साथ में. So our whipped cream is ready. So I'll be keeping it in the refrigerator for 15-20 minutes. उसके बाद I'll again give it a stir like using the grinder कि थोड़ा और ये combine हो जाए. Because I'm thinking कि instead of pouring it like normally with the spoon or thing, I'll be using a piping bag, and with the piping bag I'll be giving a good design to the बनाफे पाए. उससे थोड़ा ग्रेस भी अच्छा आएगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा. सो आई एम कीपिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र आई मीन. एंड उसके बाद आई विल बी मेकिंग द टॉफ़ी सॉस. फॉर द टॉफ़ी सॉस आई विल बी कीपिंग द एंटायर 10 of the condensed milk in the what we say the cooker. एंड कुकर में जब तक उसकी 2 whistles नहीं आती तब तक मैं उसको करने दूँगी. जैसे 2 whistles आएंगे उसको निकाल लेंगी. बट कुकर में उसको ऐसे मत रखना, उसमें थोड़ा पानी भरना फिर रखना, वरना कुकर एक्सप्लोड हो जाएगा एंड भगवान मालिक है फिर उसके बाद. सो डोंट डू दैट. मैंने कंडेंस मिल्क को मतलब 2 whistles तक कुकर में रख दिया है. अभी इसकी एक भी विसल नहीं आया. आई एम अ बिट स्कैर्ड
क्योंकि इससे पहले मैं टॉफ़ी सॉस फ्राई पैन पे बनाती थी बट उससे वो थोड़ा जल जाता था। तो आई एम यूजिंग दिस वे फॉर द फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो हाउ इट वुड कम आउट, लाइक उसका आउटकम कैसा होगा, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। बाकी देखते जैसा भी आएगा। आई एम नॉट गोना फेक एनीथिंग। जो भी आउटकम होगा वो आप लोगों के सामने होगा इस पर। अब इसका 2 टाइम्स प्रेशर आ चुका है, सो मैं अब इसको ओपन करूँगी। नाउ आई लाइक यू कैन सी यहाँ इसमें कैसे यू आर एबल टू सी कि मैंने उसमें टिन रखा था। विद द हेल्प ऑफ समथिंग, विद अ क्लॉथ और समथिंग, आई विल बी टेकिंग इट आउट क्योंकि बहुत गर्म हो चुका है। बहुत गर्म है, लिटरली वो बहुत गर्म है। उसके बाद मैं थोड़ा टिन ठंडा होने देंगे हम इसका। एंड टिन ठंडा होने के बाद आई विल बी ओपनिंग है। कि अगर ज़्यादा गर्म में करूँगी तो छाले होने का डर है, तो छाले नहीं चाहिए। एक आफ्टर मैंने कुकर से निकाला उसके बाद आई हैव डन वन मोर थिंग कि मैंने पैन में थोड़ा सा बटर एंड शुगर को पहले किया। एंड उसके बाद मैंने टॉफ़ी सॉस जो जितनी बनी थी कितना अच्छा कंसिस्टेंसी नहीं आया था, सो मैं उसको दोबारा एक बार कर रही हूँ इसमें कि सो दैट हमारी जो टॉफ़ी सॉस है वो थोड़ा अच्छे से, हमारी जो सेकेंड लेयर वो बहुत अच्छे से आएगी ना, उसका थोड़ा क्रंच होगा। और इसको ज़्यादा भी नहीं करना, अदरवाइज़ ये नीचे लग सकता है, वो जल सकता है। एंड फिर वो आगे जो हमारे टीथ हैं उसमें वो फंसेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, पहले मीडियम पे थी, इसको हमने बिल्कुल बंद कर दिया। इसको बंद, इसमें मैं यूँ कर टीट कर रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से कि नीचे ना लगे। नाउ इसमें मैंने हमारी फर्स्ट लेयर निकाल ली है, ये अच्छे से हार्ड हो गई है। अब इसमें मैं हमारी सेकंड लेयर डालूँगी जो हमारी टॉफ़ी सॉस की है। मैं मतलब ऐसे रोटेट करूँ ताकि इवनली पूरे उसमें चले, पूरे टिन में स्कैटर हो जाए। उसके बाद इसको निकालने के बाद हम इसे फिर फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट्स के लिए। मैं इसको पूरा यूँ कर लूँगी, पैट कर लूँगी। बट आप ऐसे भी पैट मत करना क्योंकि इस वजह से हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो शायद निकलना स्टार्ट हो जाए। यूज़ दिस स्पैचुला ओनली। एंड थोड़ा थोड़ा उसको, अगर कॉर्नर्स पे नहीं है तो उसको कॉर्नर्स पे हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि पूरा लेयर हमें खाना है। बेसिकली हम पूरा एक स्लाइस लेंगे तो उसमें हमारी सारी लेयर होनी चाहिए अच्छे से। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ, ज़्यादा भी मत करना, अदरवाइज इट विल रूइन दी लेयर्स, जो हमें नहीं चाहिए। एंड वंस यू फील दैट कि अच्छे से स्कैटर हो गया है, यू आर हैप्पी विद द कवरेज, देन इसको हम फ्रीजर में रखते हैं। थर्ड लेयर वील बी यूजिंग बनानास। मैंने फाइनली छोटा छोटा कर लिया। इसके बाद हमारी टॉफ़ी लेयर जो थी उसके ऊपर वील बी प्लेसिंग इट, पूरा कवर कर देंगे उसे अच्छे से। हमारी थर्ड लेयर भी हो गई है। इफ यू फील यू कैन लाइक डस्ट कोकोआ पाउडर, बट आई बी डूइंग दैट ओवर दी फोर्थ लेयर। आप थर्ड लेयर में भी कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे मेरी व्हिप क्रीम की कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं है, एक टाइम पे आ गई थी बट उसके बाद आई मेस्ड इट अप। मैं उस पर और करती रही ग्राइंडर, उसको थोड़ा वो कंसिस्टेंसी थोड़ा शेकन हो गया। सो ये जैसा है उसके आई बी लाइक पोरिंग इट ओवर दिस। फिर इसको हम 15-20 मिनट्स फिर से फ्रीज़र में रखेंगे एंड उसके बाद हाफ एन आवर to 45 minutes नॉर्मल रेफ्रिजरेटर पे, एंड देन इट्स रेडी टू सर्व। इस पर भी वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्रेस ना करें, अदरवाइज ये हमारी लेयर्स ख़राब करेगा, जो हमें नहीं करना। एंड अवॉइड पैटिंग इट, अगर करना है आप स्पून से इसको कर सकते हो।
फ्लैटन, बट पैट मत करना, अदरवाइज फिर से लेयर्स ख़राब होने की चांसेस हैं। यही अगर इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होती तो आई वुड हैव बीन यूजिंग द पाइपिंग बैग एंड उससे बहुत अच्छे डिज़ाइन आते हैं। कोको पाउडर अभी मत डालना, जब आप इसको फ्रीज़र से निकाल के इसको रेफ्रिजरेटर पे डालोगे तब आप इस पर मतलब कोको पाउडर डालना है। एंड इफ़ यू फील यू कैन ऑल्सो गो विद दी चॉकलेट शेविंग्स, दैट एड्स फ्लेवर। ओके, सो वी आर डन। Oh, that's a bit messy. And voila, it's ready. We'll be keeping it in the freezer for 15 to 20 minutes, and then the last part is keeping it in the freezer and then keeping it in the refrigerator and then serve it. Like, I have made it 3 to 4 times and I can bet you बहुत ही अफोर्डेबल है। लाइक पीपल गो टू बिग चिल टू ईट दीज बनाफे पाइज, एंड आप कहीं और भी जाओ तो यू फाइंड दी सिंगल स्लाइस ऑफ द बनाफे पाई एट अ वेरी हायर प्राइस। बट जितने का वो आपको एक पर्टिकुलर स्लाइस पड़ता है या पर्टिकुलर स्लाइस फ्रॉम बिग चिल पड़ता है, उतने का पूरा मटीरियल ला के बना सकते हो, एंड दैट वुड हेल्प यू लाइक ईट with your family if you have a get together with your friends. and like आप अगर इसको आप एक दिन पहले भी बना के रखोगे ना तो ये और ज़्यादा मतलब फ्लेवर इसमें आता है, सबको पता है। अब मैं इसको थोड़ा फ्रीज़र में रखती हूँ। व्हाई एम आई मेसिंग? ओके, लेट इट बी। मैं इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखती हूँ एंड देन रेफ्रिजरेटर, एंड जब मैं सर्व करूँगी आई विल बी रिकॉर्डिंग दी पार्ट कि कैसा लगा सबको। फॉर दैट I hope you guys are watching the video till end. Now it's time कि I'll be opening this। आप ये बहुत देर से रेफ्रिजरेटर में है क्योंकि we thought कि डिनर की बात करते हैं, डिनर हो गया एंड now it is 9:45 तो I'm opening it up। मैंने पहली बार केक टिन में बनाई है, इससे पहले मैं इसे पुडिंग डिश में बना रही थी। I don't feel it push it। Okay, well that's a pass। like I thought I'll fail completely but नहीं हुआ। ठीक है, for the final touch इसमें I am adding cocoa powder and powdered sugar की cocoa powder से थोड़ा ही होना हो, मतलब सार सा ना हो, so with the help of a sweeper I'm doing this। कैमरा के पीछे यश खड़ा होकर मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है बट ही इज टोटली फेलिंग इन इट। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि कितनी अच्छे से आया है। आई वॉज स्कैर्ड कि मतलब केक टिन से कुछ हो ना। ओके, सो वी आर डन। Okay, so like you can see the layers। ये हमारी मतलब क्रस्ट है, उसके यहाँ पे चॉप बनानास और हमारे क्या कहते हैं टॉफ़ी सॉस, एंड उसके ऊपर ये। पापा एक्साइटेड? मम्मा बीइंग कैमरा कॉन्शियस, तो मम्मा कैमरा पे नहीं आने वाली। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yash, how's it? वैसे स्पून से खाते हैं बट ठीक है। पापा, how's it? That reaction।
सो ऑन अ स्केल ऑफ 10 आप क्या रेटिंग दोगे इसे? Right now it's 10 o'clock, so 10 of 10. Okay, so am I pass? Excellent. Thank you. Yes. On a scale of 10, how much will you rate it? 8. ये सब बनाओ फिर भाई छीनो पापा. So कुछ कहना चाहोगे? लाइक सब्सक्राइब थोड़े मांग लो. महाकाल की कसम से लाइक दीजिए. Hope you guys would have loved watching this video, and if you did so, then don't forget to drop a like. And अगर आप new हैं इस चैनल को तो don't forget to subscribe so that आप आगे की videos और देख पाओ. इसके बाद I'll be starting the Nainital vlog that has 2 to 3 videos, 2 to 3 parts. So उसको देखने के लिए don't forget to subscribe and be regular, drop a like, and do share your feedbacks in the comment section so that I'll improvise. I'll definitely improvise because I'm like I stammer a bit, so I'm trying to like improve that. Okay guys, thank you so much for watching this video. Bye, take care. And हाँ, अभी जो एक कोरोना बढ़ रहा है, प्लीज़ उससे थोड़ा संभल के रहो, क्योंकि एकदम से भी गाइज गॉट रियली एक्साइटेड कि ठीक है सब खुल रहा है, बट उसके बहुत ड्रॉबैक्स थे. और अब जैसे कि कर्फ्यू लग गया है तो प्लीज़ अभी अपने घर में बैठो एंड वो कर्फ्यू की गाइडलाइंस को फॉलो करो. थैंक यू, बाय.